Welcome to the official YouTube channel of दादरोनाज and मैं आलोक सर आप लोगों के साथ अभी descriptive class को लेकर आ चुके हैं. You know that couple of videos are there and the students from the hill areas, they may also have, or the students with non-Bengali background, they may also access all those kind of videos what has been given in that is regular interval. And students who are from Bengali medium and who want to continue with the language Bengali, for them also lots more videos are there. We are running some free offline course for ICDS and PSC Clerk and WBCS Men. So this is one of our initiative that today we are going to have a video class on editorial report. Today our subject matter will be editorial report. So please students, just आप लोग इस क्लास को थोड़ा रैप्ट अटेंशन के साथ कीजिए. आज हम लोग यहाँ पर एक एडिटोरियल रिपोर्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, सीखेंगे एक एडिटोरियल रिपोर्ट. ओके, जिन लोगों का बंगला में प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों के लिए वहाँ पर इंसिडेंटल रिपोर्ट के ऊपर भी वीडियो है, वो भी देखिए. आप लोगों के लिए भी इंसिडेंटल रिपोर्ट के ऊपर वीडियो आएगा. सो टुडे सब्जेक्ट मैटर इज एडिटोरियल रिपोर्ट. आपको अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा एंड दैट विल मोटिवेट अस a lot. So today's subject matter is editorial report and this would be fruitful for ICDS as well as PSC Clerk. This will be fruitful for ICDS and PSC Clerk and WBCS miscellaneous, whatever it is. ICDS Supervisor Main. This one is ICDS Supervisor Main mainly, but this video can also be fruitful for that public service clerkship men, miscellaneous men and WBCS men. And today's subject matter is editorial report, and for this year depression is going to be the hot cake for us. So today's subject matter is depression spearheading suicides among youth. कि आजकल हम लोग के अंदर whatever it is, it can be the failure, it can be the mounting of the pressure, mounting of whatever it is, the depression, the cause of depression is being, that is, the leading to the suicide. Okay, so today we are going to deal with that, and it's completely an editorial report. What's the difference between editorial report and incidental report? What's the difference between editorial report and incidental report? In case of incidental report, just you report a particular incident. It can be any natural calamity, it can be an accident, it can be that is the outbreak of fire, whatever it is. But in case of editorial report, it's just a research based report. That is, we generally produce a report that regarding a problem that is continuing, that is killing us for a long period. So depression, it's a a burning topic for today's generation, and for it has taken a bad shape in today's society. So this can be a hot cake for this year 2020 or 2021 ICDS, PSC Clerk or WBCS. The title is Depression Spearheading Suicides Among Youth. This is the headline. It is the headline. This is the headline, or a catchy headline you have to provide. You have to provide a catchy headline, and if it's possible, then you try to provide a subheading. If you are lacking time over there in the exam hall, especially for the PSC Clerk men, you may drop this thing. You may drop subheading, but आपको एक headline, that means एक heading आपको देना ही पड़ेगा. एक अच्छा खासा heading आपको देना ही पड़ेगा, and your heading, should be very sexy. It looks, so catchy. Unless you may have some problem. Problem मतलब आपका marks ज़्यादा नहीं आएगा. After that, you write the name of the place where from you are producing your report, and you write the name of the news agency. Don't take your name directly. Don't say that I am, like Rohit Sethi from Kolkata. Not like that.
You simply write staff reporter and Kolkata. And in your question paper, if you are asked not to write the name of any place, you may give XYZ or like that, okay? XYZ, MNP, whatever. So this is my unique style. I have imbibed it from Economic Times. Economic Times में एडिटोरियल रिपोर्ट ऐसे करके लिखते हैं. आप लोग जब बहुत सारे चैनल फॉलो करते हो, आप लोग देखते हो कि जगह का नाम इधर दिया जाता है, बट you can also write the name of the place where from you are going to report. You may write over here with the name of the agency, and then you provide the date. Don't be, what to say, that is so judgmental regarding that what would be your date. You may produce anything else, no problem, okay? And your editorial report should contain at least 2 to 3 paragraphs, okay? 2 to 3, not more than that, 2 to 3 paragraphs. Those are enough. And in the first paragraph, you will summarize the total thing. You will summarize the total thing, okay? You will summarize the total thing in the first para, in the first slide. So let's start. Again, I am saying, please go through newspaper, try to take words from there, expression from there, as if it sounds so real, okay? Don't follow any bookish note from market. Don't roam here and there in different kind of channels, then you may get confused, okay? आप खुद लिखो, और एडिटोरियल रिपोर्ट लिखने के लिए इस स्किल को आपके अंदर, ताकि ये मतलब डेवलप हो, इसलिए आप एक काम कर सकते हो, कुछ न्यूज़पेपर से कुछ न्यूज़ उठाओ और उस न्यूज़ को खुद लिखो. न्यूज़ उठाओ और न्यूज़ खुद लिखो. Then it would be a great one, and you can, and what to say, build up the skill so well within you, okay? So let's start. Prolonged depression, which has become the leading cause of suicide among young Indians, has been rampant in India, according to a report published by WHO. आप यहाँ पर NCRB, National Crime Records Bureau का नाम भी ले सकते हो. So क्या बोल रहा है? Prolonged depression, which has become the leading cause of suicide among young Indians, has been rampant in India. Rampant मतलब it has been in alarming condition. Rampant in alarming condition, India, according to a report published by WHO. Shockingly, peer pressure. Peer pressure क्या है? मानो कि आप एक क्लास में हो या आप कुछ नौकरी के लिए कुछ प्रिपरेशन ले रहे हो, आपका दोस्त जो है वो लोग आगे निकल गए, उन लोग का जॉब हो गया, आपका जॉब नहीं हो रहा है. सो दैट्स कॉल्ड द peer pressure. Competitive environment, आपको कुछ इस वर्ल्ड में आसानी से नहीं मिलते हैं. जहां पर जीडीपी माइनस में हो गया है, अभी तो और भी नहीं मिलेगा, कंपटीशन और भी हाई हो जाएगा. सो कंपिटिटिव एनवायरनमेंट, जो लोग इस कंपटीशन में टिक नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए ये डिप्रेशन आ जाता है उन लोग के अंदर. जॉब चली जा रही है और जॉब नहीं भी मिल रहा है, सो जॉबलेसनेस. इनसैटिएबल डिमांड्स ऑफ लाइफ. इनसैटिएबल मतलब अनफुलफिल्ड, जो आपका फुलफिल नहीं हुआ. आप मामी पापा को खुश देखना चाहते हो, आप एक नाम कमाने चाहते हो, आप गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड को आप खुश देखना चाहते हो, या आपका जिंदगी का बहुत सारे डिमांड्स भी हो सकता है, कुछ ख्वाहिश भी हो सकता है, तो आप वो पूरा नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज दोज आर बीइंग इनसैटिएबल, बिकॉज आपके पास वो जॉब नहीं है. जब वो पूरा नहीं हो रहा है, सो दोज आर एडिंग सॉल्ट टू योर इंजुरी. मतलब आपके पास तो एक तो है ही आपका अनसक्सेस, उसके ऊपर आपका ये सेपरेशन मतलब ये सक्सेस ना होने का ये दर्द आपके ऊपर आ रहा है. सो दैट्स कॉल्ड एडिंग सॉल्ट टू इंजुरी. मतलब और भी ये जो कंडीशन जो है बैड टू वर्ड्स हो रहा है, ठीक है ना. सो दीज आर द कॉजेज बिहाइंड द डिप्रेशन दैट हैज बीन सेड. एट दिस क्रूशियल जंक्चर, ये कंडीशन में, इस हालात में, सुसाइड इज बीइंग द लास्ट ऑप्शन to evade the suicide of life. जिंदगी का जो एक्चुअली असलियत जो होता है वो हम लोग फेस नहीं करना चाहते, रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग एस्केप कर जाते हैं, क्विट कर जाते हैं जिंदगी से. तो क्विट करने का और एस्केप करने का तो एक आसान तरीका होता है, वो है सुसाइड. तो हम लोग सुसाइड कर लेते हैं. और इस बार सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड जो वायरल हो चुका है, ये एक न्यूज बन चुका है इन इंटरनेशनल एरिना, यू मे से. तो फ्रॉम दैट एंगल ये आप लोगों के लिए आ सकते हैं.
तो सुइसाइड इज बीइंग द लास्ट ऑप्शन टू इवेट द सिमिसाइड ऑफ लाइफ। और आप लोगों को शायद पता है कि लास्ट ईयर you know that 2 IIT universities total 5 students have committed suicide, and in St. Xavier's College from Kolkata 1 boy committed suicide, and in Jadavpur University 1 student committed suicide। तो ये सब मुद्दे को लेकर हम लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। सुइसाइड इज बीइंग द लास्ट ऑप्शन टू इवेट द सिमिसाइड ऑफ लाइफ। सिमिसाइड मतलब रियलिटी ऑफ लाइफ। सिमिसाइड आपका शर्ट जो होता है ना, आप शर्ट को उल्टा करो, मतलब उसका जो बाहर नहीं रहता है, उसका अंदर वाला पोर्शन जो है वो कितना खराब होता है ना। इसीलिए हम लोग का जिंदगी का जो रियलिटी है वो कितना खराब होता है, वो रफ होता है, वो इतना प्लेन, इतना व्हाट टू से दैट इज डैजलिंग नहीं होता है। तो शर्ट का बाहर साइड देखो कितना डैजलिंग होता है, जो लोग एक्चुअली देखते हैं, देख के बोलते हैं आपका शर्ट कितना अच्छा हुआ। सिमी साइड मतलब आपका शर्ट का अंदर। सो वहां से ये इडियम आया है, मतलब रियलिटी ऑफ लाइफ। So nowadays, youth section is significantly cut off from the social life due to their busy schedule and digital habit। आजकल क्या है, हम लोग मामी पापा या हम लोग के अपनों में या दोस्त के साथ हम लोग बात नहीं करते, हम लोग कट ऑफ हो चुके हैं, एकदम अलग हो चुके हैं। हम लोग का जिंदगी हो गया है हम लोग का वो फोन। इसलिए हम लोग बिजी शेड्यूल में, एक तो जिंदगी का भागदौड़ में हम लोग बिजी हो चुके हैं, और हम लोग के अंदर एक डिजिटल हैबिट आ चुका है। ऑल टाइम हम लोग का फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ये सब हम लोग का दुनिया हो चुका है। तो डिजिटल हैबिट में यूथ सेक्शन बिजी हो गया है। So no one is being there to pump out his or her untold emotions. So that means you are not being able to, you are not having your time to share your pangs, share your pain, share your joy, with your near and dear ones। You are not being able to share your pain with your parents or your friends or your relatives or your teacher। Okay, वो टाइम भी नहीं है आपके पास, और आपका हैबिट भी वो चला गया बात करने का, एक साथ वो मतलब बात करने का। तो इसीलिए क्या हो रहा है, पंप आउट नहीं हो रहा है इमोशंस। ओके, सो उसका एक प्रेशर अपने आप आ रहा है, और रिगार्डिंग दैट इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, सुइसाइड हो रहा है। तो मैंने पहले क्या बोला था कि आपका फर्स्ट स्लाइड, ये मतलब आपका फर्स्ट पैरा में पूरा आपका रिपोर्ट का जो मेन मुद्दा है आप वो बोल दीजिए। ठीक है, आप फर्स्ट पैरा में ये बोल दिए। आई थिंक आई हैव बीन एबल टू मेक इट क्लियर। क्लास करते रह जाओ, देखो अच्छा ही लगेगा। सेकंड जो है, सेकंड में आपको वर्ड लिमिट भी आपको याद रखना पड़ेगा कि ज्यादा ना हो जाए। सेकंड में आप थोड़ा डिटेलिंग करने के लिए कोशिश करो। ये डिटेलिंग आपका फर्स्ट पैरा में नहीं आना चाहिए। अगर आपके हाथ टाइम नहीं है तो आप सेकंड पैरा फर्स्ट पैरा मार्च करके भी लिख सकते हो। तो चलो सेकंड पैरा में डिटेलिंग करते हैं। और बाय द वे आपका ये जो राइटिंग जो है आप WBCS मेन के लिए यूज करो, आप PSC मिसलेनियस के लिए यूज करो, PSC मिसलेनियस के लिए यूज करो, आप PSC क्लार्क के लिए यूज करो, आप ICDS के लिए यूज करो, आप जो CGL Tier 3 जाने के लिए जा रहे हैं वहां पर भी यूज कर सकते हो। सो आप चाहे तो NDA में भी दे सकते हो। सो लाइक दैट आप ये राइटिंग हर जगह पर आप यूज कर सकते हो। ऐसे करके लिखा हुआ है ताकि इस वीडियो से आपको जो भी आपका सामने एग्जाम आए डिस्क्रिप्टिव पैटर्न का, आप इसको इस्तेमाल कर सको। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैरा। साइकियाट्रिस्ट, इन लोग तो ये विषय में तो माहिर है और इन लोगों का नाम तो यहां पर आपको लेना ही पड़ेगा। साइकियाट्रिस्ट थिंक दैट प्रोलॉन्ग डिप्रेशन, प्रोलॉन्ग मतलब जो कंटिन्यू करता है फॉर लॉन्ग टाइम, प्रोलॉन्ग डिप्रेशन इज लेफ्ट अनहील्ड, मतलब अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हो, इफ लेफ्ट अनहील्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द V3 फॉर्म पार्टिसिपल। इफ लेफ्ट अनहील्ड, आप अगर उसका ख्याल नहीं रखते हो, सो मे प्रोपागेट अ फीलिंग, प्रोपागेट मतलब क्रिएट, क्रिएट, आप प्रोपागेट अगर नहीं लिख सकते हो आप क्रिएट लिखो। मे प्रोपागेट अ फीलिंग्स ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस, आपके अंदर वो जब अगर हील नहीं करेगा कोई, अपना कोई आके अगर उसका हील नहीं करते हैं, बात करके उसको अगर पंप आउट नहीं करते हैं, तो अपने आप आपके अंदर एक सैडनेस आ जाएगा, है ना। तो तब आपका दम घुटेगा कि क्या करूं मैं, चलो सुइसाइड ही कर लेते हैं, इसका तो कोई हाल नहीं है, इसलिए व्हिच रिजल्ट्स इन सुइसाइड, तो वो सुइसाइड कर बैठते हैं। ये किसको मानना है, ये साइकियाट्रिस्ट का मानना है, ठीक है, साइकियाट्रिस्ट का व्यू पॉइंट है। ये थोड़ा आपका रिपोर्ट को रियल करना पड़ेगा, एकदम बुकिश नहीं करना है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में जैसे लिखते हैं आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा। ओके,
अच्छा, बिसाइड्स, इसके अलावा a research has found that association with heavy technology and digital media outcomes in poor mental health which leads to suicide. आप जितना टाइम आप ये डिजिटल दुनिया में आप स्पेंड करोगे उतना ही आपका मेंटल हेल्थ पुअर हो जाएगा, लेकिन इसका उपाय भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिन लोगों का जिंदगी ये हो बन चुके हैं, मतलब ये टेक्नोलॉजी उनका माने सिनोनिम हो गया उन लोगों का लाइफ का, लेकिन क्या करें, ये आप जितना देर आप ये सब के साथ बिताओगे उतना ही आपका मेंटल हेल्थ पुअर होते जाएगा, दैट विल लीड्स टू सुसाइड। Today's generation spends less time with their friends or parents in person. In person एक idiom है, in person मतलब personally हम लोग क्या करते हैं, मम्मी पापा फ्रेंड पेरेंट्स के साथ बात नहीं करते। इसीलिए तो इस बार एक टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन का पॉजिटिव साइड्स क्या है। हस्बैंड वाइफ को टाइम दे रहा है, वाइफ हस्बैंड को टाइम दे रहा है, सन एंड डॉटर पेरेंट्स को दे रहा है, पेरेंट्स सन एंड डॉटर को दे रहे हैं, दे पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। तो ये एक टॉपिक ही बन गया। क्यों इंडिया में कैसे, क्यों ऐसे होगा? इंडिया तो एक सोसाइटल नॉर्म्स को मानते हैं, लेकिन यही हो चुका है। सो टुडेज जनरेशन स्पेंड्स लेस टाइम, ऐसे करके अगर लिखोगे सेकेंड पैरा तो थोड़ा रियल एसेंस आएगा। अब लास्ट पैरा में जब जाएंगे हम लोग, लास्ट पैरा इज टोटल द रिफ्लेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन एंड वन थिंग आई एम सेइंग, जर्नलिस्ट का कोई खुद का कोई ओपिनियन नहीं रहता है, ठीक है। आप तो जर्नलिस्ट हो ना, आप एज अ जर्नलिस्ट इस रिपोर्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो, सॉर्ट कर रहे हो, तो एक जर्नलिस्ट का खुद का कोई ओपिनियन नहीं हो सकता है। आप अपना ओपिनियन बोलोगे, यहां पर इंक्लूड करोगे, बट थ्रू अदर लिप्स। ओके, कैसे देखो, as domestic arena can also be the birthplace of the frustration as well as depression among the young ones owing to the astounding aspiration fostered by their parents, they have to tailor a foolproof solution for it. आप चाहो तो इस सेंटेंस को अलग भी कर सकते हो, स्प्लिट भी कर सकते हो, और यू कैन प्रोड्यूस टू सेंटेंसेस, लेकिन एक ही बात पे आप लोगों को एकदम स्टिक रहना होगा कि नो स्पेलिंग मिस्टेक, नो फॉर्मेट रिलेटेड एरर एंड नो आउट ऑफ द ट्रैक डिस्कशन। पॉइंट के बाहर हम लोग नहीं जाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे, और सेंटेंस फॉर्मेशन या टेंस का जो एक्चुअली सीरीज जो होता है वो भी गलत नहीं होना चाहिए, तो एक भी मार्क्स नहीं देगा जितना भी अच्छा आप वर्ड्स यूज करो। तो क्या बोल रहा है देखो, एज डोमेस्टिक एरिना कैन ऑल्सो बी द बर्थ प्लेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन एज वेल एज डिप्रेशन अमंग द यंग वंस। डोमेस्टिक एरिना मतलब आपका घर, आपका परिवार, आपका स्कूल, आपका इंस्टीट्यूट, जहां पर क्या होता है, यंग वंस गोइंग टू द एस्टाउंडिंग एस्पिरेशन फॉस्टर्ड बाय देयर पेरेंट्स। यहां पर टीचर का नाम भी लिख देना, टीचर लोग भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब पेरेंट्स और टीचर्स उनके ऊपर जब एस्टाउंडिंग एस्पिरेशन दे बैठते हैं, मतलब क्या हो रहा है, आपका देखो आपका फ्रेंड्स कितना आगे बढ़ रहा है, उसका नौकरी हो जा रहा है, उसका अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है, उसका मैथ्स में कितना अच्छा मार्क्स आया, आपका नहीं है, आपको भी मैं तो इतने सारे मतलब फैसिलिटीज दे रहा हूं, इतना सारे टीचर दे रहा हूं, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट में तो हो, कोई कसूर नहीं है हम लोग की तरफ से, फिर भी तुम्हारा मार्क्स नहीं आ रहा है। ये जो प्रेशर दबाव घर की मतलब पेरेंट्स लोग देते हैं, so that can create a dangerous thing and that can create frustration as well as depression among the young ones. They have to tailor matlab they have to what to say, provide, they have to create, they have to find out, they have to create, provide a foolproof solution for it. इसके लिए solution चाहिए ताकि ये premature death through suicide ना हो। Institutions must create an opportunity for psychological counseling. इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूट मस्ट क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इंस्टीट्यूट में एक्चुअली होना चाहिए। प्रिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट ग्रुप प्रिस्क्राइब कर रहा है कि इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिटी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सोसाइटी हैज टू कम फॉरवर्ड, सोसाइटी हैज टू कम फॉरवर्ड फॉर इम्पार्टिंग द एक्सियम दैट लाइफ इज लार्जर देन एनी टाइप ऑफ ट्रांजिएंट सक्सेस और फेलियर। सोसाइटी हैज टू कम फॉरवर्ड, सोसाइटी को और भी आगे आना चाहिए फॉर इम्पार्टिंग द एग्जाम दैट लाइफ इज, एग्जाम मतलब कॉन्सेप्ट, एग्जाम मतलब कॉन्सेप्ट, क्लियर कट कॉन्सेप्ट। ये सोसाइटी को ये देना चाहिए कि बोलना चाहिए उन बच्चों को ये मैसेज, क्योंकि सोसाइटी का डर से, सोसाइटी का डर से हम लोग बहुत कुछ कर बैठते हैं। सो
लाइफ इज लार्जर देन एनी टाइप ऑफ ट्रांजिएंट सक्सेस। आज आपके पास सक्सेस है, काल नहीं भी हो सकता है। आज आपके पास पैसे है, काल नहीं भी हो सकता है। सिमिलरली आज आप फेलियर हो, काल आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो ये ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट मतलब नॉट परमानेंट, ट्रांजिएंट मतलब नॉट लॉन्ग लाइव्ड। तो सक्सेस, आज जो सक्सेस टॉप में है वो कल गिर सकते हैं वहां से। सो दैट्स वाई फेलियर सक्सेस ये ट्रांजिएंट है, नॉट परमानेंट। लेकिन आपका लाइफ जो है वो लार्जर है। लाइफ इज लार्जर। आपको लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट योर सक्सेस एंड फेलियर, रेदर इट्स ऑल अबाउट योर एवरीथिंग एल्स अराउंडेड यू। सो दैट्स वाई ये एग्जाम कॉन्सेप्ट जो है ये सोसाइटी को, ये मैसेज किसको देना चाहिए? यंगस्टर्स को देना चाहिए। ऐसे करके आप इसको खत्म कर दीजिए। तो इसमें टोटल 2-3 सेंटेंसेस, 2-3 पॉइंट्स जस्ट आई वांट टू से अगेन कि आप एक कैची टाइटल प्रोवाइड कीजिए। नॉट नेसेसरी कि ऑल टाइम आपको स्टार रीडिंग यू हैव टू डू, you have to provide, not that mention the name of a place where from you are just generating your report, provide the name of a news agency, give one date, okay. Then in the second para you try to make it in detail, say it in detail, whether in the first para you sum up your total report, sum up your total report, second paper detailing, and third para जो है, थर्ड पैरा हो जाएगा आपका, क्या बोलिए, सॉल्यूशन। देखिए यहां पर आई थिंक, वी थिंक ऐसे करके नहीं है। और एक बात, जस्ट 2 पॉइंट्स, फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स आई एम जस्ट, आई मीन व्हाट टू से, कमिंग अक्रॉस विद लॉट्स मोर राइटिंग्स, आई मीन बाय माय स्टूडेंट्स। वहां पर मैं देख रहा हूं कि एडिटोरियल रिपोर्ट एज अ पैराग्राफ की तरह लिख रहा है स्टूडेंट्स लोग। ऐसे नहीं होना चाहिए। You have not been asked to write a paragraph, rather an editorial report. So report का essence, newspaper का originality वहां पर होना चाहिए, number 1. And number 2, please don't use first person or the second person pronoun. Okay? आपका खुद का कोई मतलब right ही नहीं है यहाँ पर बोलने का। So those are all about the report on depression, spearheading suicides among youth, depression. Okay? So please follow our channel. If you have liked our process of teaching, then just like the videos whatever have been given over there, okay, share with your friends and just drop down your comments. If you have any suggestion for us, you can give it. और आप इसको देखो, खुद एक बार लिखो। अगर आप चाहो कि टीचर के पास एक डेडिकेटेड कोर्स के थ्रू आप ट्रेनिंग लोगे, so you can come under our course module, okay, and to talk to our teachers you can bring up through 8436900456। चैनल देखते रहो, बहुत सारे हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, रेल के, बैंक का, जो एक्चुअली टेट का, बहुत सारे वीडियोस हैं, देखते रह जाओ आप लोग। डेफिनेटली इट वुड बी फ्रूटफुल। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ो। विदाउट न्यूज़पेपर रीडिंग नथिंग कैन बी द कंप्लीट वन। ओके, दैट इज ओनली नेक्स्ट टू नथिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग। सो दैट्स वाई न्यूज़पेपर पढ़ो, घर में लिखो और सेंटेंस पैटर्न ठीक से करो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस, थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ अस। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद।